Good morning, dear students. Good afternoon. Uh, First, following this topic, we are going to study the emergence of new thoughts, which were the quite different and most striking and revolutionaries against the Brahminical thoughts, against the Vedic thoughts. Okay? Or mostly these thoughts resembled resembled with the Upanishadic thoughts, Upanishadic philosophical thoughts, which now put a lots of questions about the relations between the human beings and the in actual relations what the is between the God and this question. And these are the very philosophical question and practical also. And these thoughts are mostly and hugely influenced by the Upanishad. The students, the two by the 600 BC before Christ, the not only the two major, particularly the Buddhism and Jainism, this was these two religions were the great voice against the existing, long existing uh, Brahminicals rituals, thoughts, and the religion, in which the yajna, sacrifices, caste dominancy on the basis of the Dharma Sutras, on the basis of the birth, these all were in the Brahminical orders. But these two religion in India particularly I am talking about now sharply struck upon this dominancy of the Brahminism and dominancy of the rituals, yajnas, sacrifices, and moreover the preferences on the basis of the two revolutionary ideas from Brahmanism and Jainism. So before that, we must have to look around this world. So what was going on in this world? The in the mid first millenniums BC is often regarded as the turning point in the world history. ये केवल एक थॉट्स केवल भारत के लिए नहीं था बल्कि in contemporary time almost in the most of the part of the world this kind of the thoughts experience and particularly we see that the emergence of thinkers Zarathustra in Iran, Zarathustra in Iran, Kongji in China, Socrates, Aristotle and Plato. They were the now thinkers belong to the Greeks, Greek thinkers. And Mahavir and Gautam Buddha who belong to our country, we know very well. In India, they tried to understand why, why, what was their thoughts. They tried to understand, try to understand that mysteries of the existence, mysteries of existence and relationship between the human beings and the cosmic order. इन्होंने ये समझने की कोशिश की कि
ह्यूमन बीइंग का जो एग्जिस्टेंट है, अस्तित्व है, उसका रहस्य क्या है, एंड इसका रिलेशनशिप ह्यूमन बीइंग का और ये कॉस्मिक ऑर्डर्स जो है, जो नेचर, गॉड इज सुपर नेचुरल पावर, इसका क्या रिलेशन है अपॉन दैट कॉस्मिक ऑर्डर। एंड दिस वाज आल्सो द टाइम द न्यू किंगडम, और इसी समय में ये ऐसा भी समय था जैसे मैंने कहा कि न केवल एक इकोनॉमिक ये रिलीजियस रिवोल्यूशन हुआ, बल्कि एक टाइम क्या था, इकोनॉमिक रिवोल्यूशंस का भी टाइम था। क्योंकि बिकॉज इन गंगेटिक वैलीज large scale jungles were being cleared and were made converted into the cultivable lands, and moreover the six cities were, and the process of urbanization was at the speeded up during this period. Then, under these circumstances, the new kingdoms emerged, new kingdoms came up in the dotted in the different parts of our country in form of 16 Mahajanapadas. The new kingdoms now came and we are developing. Social and economic life was changing. Social life means different occupational groups were emerging as a jati, because around the agricultural economy was enhancing and developing around that to support that many of the occupational groups also and jatis are in process of new jatis, and economic life was changing, social life was changing in that, in the particularly in the Gangetic Valley. This process was going in the valleys, and these thinkers now what attempted understand these developments as well. These thinkers now attempted to know, for example, Gautam Buddha, why they laid a stress on the non-violence? Because in the name of yajna, sacrifices were prevalent. So the cattle, wealth, and livestock, which was the very important for the agriculture and important for the economy, these were slaughtered large scale. People who were able and if having the efficiency and ability to achieve something were being suppressed under the dominance, under the uh, unscientific and unscientific feat of the caste system. They were being suppressed under this caste system. Their ambitions were suppressed. Thousands of people who were the able and efficient were being neglected. And this kind of the situation was prevalent. Now, moreover, there were several pre-existing traditions of the thoughts before the emergence of Buddhism and Jainism. Religious beliefs and practices were prevalent, including early Vedic traditions also were prevalent. And now it was the known from Rig Veda. Early Veda, Rig Veda we have know that, and according to that bit, and this Rig Veda written 1500 circa 1500 to the 1000 BC. Rig Veda consisted of hymns in praise of variety of deities, and particularly Indra, Agni, Soma, Varuna, Aditi, Usha, Usa. These all were being chanted in the Rig Veda. We know many of the deities were, or particularly Agni, Indra, and Soma. They were the more important. And many of these hymns were chanted when, और ये hymns कब chant किए जाते थे, कब recite, जब भी कोई sacrifice किया जाता, animals were sacrificed and were performed, and yajna when the sacrifice is performed, and where the people prayed for cattle,
son, good health, and long life. Now, by sacrificing the animals and livestock, they were aspiration. They had the aspiration and longings for the cattle's wealth. One hand by slaughtering, other hand longings for cattle wealth. Sons they were now wishing for the fine sons, and moreover good health for their family and long life. Now this was the very ridiculous. On one by the sacrifices, people were longing for that. In the and the mantras were being chanted in the wake of asking. These sacrifices performed, it was the collectively, and later 1000 to the 500 onward some were performed by heads of the household. ये तो पहले कलेक्टिवली किया जाता था यज्ञ, लेकिन बाद में लेटर ऑन ये पर्सनली हाउस होल्ड भी इसको परफॉर्म्स करने लगे और हेड ऑफ द हाउस होल्ड फॉर वेल बीइंग ऑफ द डोमेस्टिक यूनिट। यज्ञ क्यों किया जाता था? रिचुअल्स की फॉर द वेल बीइंग, फॉर द वेलफेयर ऑफ द and for the good health, for well-being, for good fortune, for the family. These were the done, and more elaborate sacrifices were also performed, such as the Rajasuya Yajna. It was performed by the kings and the greats, and Aswamedha Yajna was also performed, where the performed by the chief and the kings dependent of, and for this yajna performance, yajna rituals को कौन perform करा? They were dependent on the brahmanas who conduct the rituals. वही brahman rituals conduct. Understand? And more new questions now arises amongst the thinkers and philosophers. These many ideas found in Upanishads 6th century BC onwards show that peoples were curious about the meaning of life. उपनिषद मैंने पहले कहा कि उपनिषद ने खुद ही इतना क्वेश्चंस किया कि people were very much curious and were the now they had the interest to know these things, mystery of the life. Now the questions was that what is the meaning of this life, possibility of life after death, whether where the after the death atma goes, where the atma resides, how this and later life, after the life, whether the rebirth happens, this atma exit from this body, then after the takes the reside in other body and takes the birth in the other form. These questions begin to be the asked. And now rebirth. Was rebirth due to the past action? As you will do in this world, so you will find in that world and your next birth. इस जन्म में तुमने किया पाप, अगले जन्म में तुम ऐसा बर्थ होगा, वैसा बर्थ होगा। तो वॉज दिस एक्शंस, पास्ट एक्शन, क्या हमारे पहले के जो कर्म है क्या उसका हमें फल, हमें रिजल्ट मिलता है? दिस इज द क्वेश्चन ऑफ दिस फिलोसफिकल्स, और सच इश्यूज वेयर हॉटली डिबेटेड, और इसी पर डिबेट कॉन्सेंट्रेट सेंटर यही इश्यूज था कि व्हाट इज द एंड मोर thinkers were concerned with understanding, जो भी विचारक थे, and expressing the nature, the ultimate reality. Now thinkers काफी, they were very much concerned understanding or expressing the nature of the ultimate reality, कि जो ultimate reality है, जो आत्मा का परमात्मा है, जो ultimate reality, उसका nature है, उसका expression क्या है, how परमात्मा expressed, उसका nature क्या है? This was the issues of understanding of these thinkers, great thinkers and philosophers.
Now, perhaps the authors outside the Vedic traditions के बाद asked whether or not there even was a single ultimate reality. उन्होंने वैदिक के आउटसाइड द वैदिक ट्रेडिशंस के क्या ये सिंगल गॉड है, सिंगल कोई अल्टीमेट रियलिटी है, एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में, वर्ल्ड में, सिंगल अल्टीमेट रियलिटी पीपुल एल्सो, और ये क्या था, ये वैदिक परंपरा और ट्रेडिशन से बाहर सूचना लोगों ने सी, एंड दिस इज द क्वेश्चंस मोर ओवर फर्दर the people started to get the glimpses of the lively discussion or debate from Buddhist text, और इसमें ज़्यादातर जो साइंटिफिक और आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट है जिसमें हम स्टडी करते हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट, आप में राइट है, आप जो भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट पढ़ेंगे दैट विल गिव रियल पिक्चर ऑफ द ब्राह्मणिकल्स जो ऑर्डर है, जो फोर ऑर्डर्स है, वर्ण पर ज़्यादा इम्फेसिस करते हैं, लेकिन नहीं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है वो रियलिटी पर इम्फेसिस करता है, ये प्रैक्टिकल टेक्स्ट है, और पर्टिकुलरली बुद्धिस्ट टेक्स्ट मेंशन करते हैं कि एज मेनी 64 सेक्ट्स ऑफ द स्कूल्स ऑफ द थॉट, कहते हैं उस वक्त जो भारत में उस कॉन्टेम्प्रेरी टाइम 64 thinkers and sects and the group were existing in India, and टीचर्स ट्रेवल, और टीचर्स क्या था, दे ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, फ्रॉम वन sides of the country to the other side. Why? In quest of searching, in quest of their debates, holding the debates. Why? They wanted to be the trenched, wanted to be the quenched from these questions, where they will get this answer. Questions say, haunting their mind. They are the loitering for that, longing for questions. So the scholars from one part to the other parts of the country, now they travels, and during this time travel and convince one another. Well, the lay persons, they were traveling for convincing the people from their thoughts एंड वैलिडिटी ऑफ देयर फिलोसफी, और वो चाहते थे कि उनकी जो फिलोसफी है उसकी वैलिडिटी को एस्टेब्लिश करना, दे हैड द वेरी important debates, hot debates, and whosoever got सक्सेस, जो भी है, अगर उसे सक्सेस मिल जाता है या ही इज ओवर पावर्स द अदर एंड override others in the discussion and convinced others by his argumented, अगर वो अपने आर्गुमेंट से दूसरे को कन्विंस कर दिया, इट वॉज दैट कन्विंस्ड पर्सन बिकम द डिसिपल्स ऑफ दैट पर्सन। ये एक परंपरा थी, एक परंपरा था कि अगर हम तर्क में किसी ने हमें हरा दिया, अगर डिफीट कर दिया, तो वो हमारा गुरु है। ये हमारे भारतीय, ये इंडियन कल्चर्स की एक परंपरा थी जिसको हम मान लेते थे तर्क के थ्रू, एंड convinced another lay person validity of their philosophy, and we understood the world. Debate took place, और ऐसे डिबेट्स पर्टिकुलरली होते थे जिसका एक प्लेस था पर्टिकुलर, ये उटागर शाला में लिटरेरी हट विथ पॉइंटेड रूफ, इसका लिटरेरी मतलब होता है उटागर शाला का कि ये एक पॉइंटेड हट, राउंड पॉइंटेड हट, कोनिकल पॉइंटेड हट होता था, और उसी हट में ये डिस्कशन किए जाते थे, और इसीलिए इसको उटारा शाला कहा गया है। एंड वेयर, या तो किसी में ग्रोव्स में, वेयर ट्रेवलिंग मेडिकेंट्स हॉन्टेड, कोई ग्रोव्स, मैंगो ग्रोव्स है या कोई ग्रोव्स है, वहाँ पे जो मेडिकेंट्स होते थे, दे यूज्ड टू हॉल्टेड देयर एंड द डिस्कशन हैपेंड देयर, उसके बाद वो वहाँ बैठकर डिस्कस करते थे, and if the philosophers
सक्सीडेड इन कन्विंसिंग वन ऑफ हिज राइवल्स। मान लीजिए कि दो राइवल्स, दो डिफरेंट व्यूज के लोग बैठे हैं, अगर कोई फिलोसफर या थिंकर्स अपने व्यूज से या अपनी जो वो पुट करता है, अपने तर्क को रखता है, और दूसरे के पास अगर दूसरा उसको उसके तर्क को कन्विंस कॉन्फेस करता है, उसके तर्क को एक्सेप्ट कर लेता है, या उसके तर्क को कट नहीं कर सकता या डिफेंड नहीं कर सकता, रिफ्यूट नहीं कर सकता, तो उसके बाद वो उसको मान लेते थे। That is that. And the followers of the latter become the disciples. So support for many particular sects would grow and shrink over time. इसलिए जो सपोर्टर्स होते थे, बहुत से थिंकर्स थे, कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते थे, कभी वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते थे, लेकिन सम टाइम्स क्या होता था, कभी वो कम भी हो जाते थे उनके सपोर्टर्स, क्योंकि दैट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन कि कितना कितने लोगों को उन्होंने कन्विंस कर दिया, कितने लोगों को। ओके, तो ये टाइम टू टाइम कभी कभी ये जो अ, इनके डिबेट्स के या जो थॉट्स थे, टाइम टू टाइम इनके जो नंबर्स थे वो कभी बढ़ जाती इनहेंस होते थे, कभी श्रिंक कर दिस वन। एंड मोर ओवर मेनी ऑफ दिस टीचर्स, जैसे इसमें इनमें से दो टीचर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हुए, आप जानते भी हैं, महावीरा एंड द बुद्ध, गौतम बुद्धा एंड महावीरा। क्वेश्चन, इन्होंने क्वेश्चन किया ऑथोरिटी ऑफ वेदाज, कि वेदों की क्या ऑथोरिटी है, वेद की। और दे एम्फेसाइज्ड इंडिविजुअल एजेंसी, उन्होंने कहा कि देयर इज नो मिडिल मैन, ईश्वर है, मान लीजिए गॉड, वो तो अनिश्वरवादी थे ये बुद्धिस्ट, लेकिन वो कहते थे कि नाउ इम्फेसिस इंडिविजुअल एजेंसी पर उन्होंने दिया, पर्टिकुलर इंडिविजुअल के उसके एफर्ट्स पर, और उन्होंने इंडिविजुअल पर इम्फेसिस किया, और उन्होंने कहा कि नाउ सजेस्टिंग मेन एंड वुमेन कुड स्ट्राइव टू अटेन द लिबरेशन। उन्होंने कहा कि एक मेन एंड वुमेन कुड अटेन एंड दे कुड themselves or himself or herself, they could and they can make the effort, वो प्रयास कर सकते हैं, effort effort to attain the liberation, यानी कि मोक्ष प्राप्ति के लिए या निर्वाण अटेंड करने के लिए मेन एंड वुमेन कैन नाउ मेक देयर ओन एफर्ट्स। इसमें किसी की मीडिएटर की कोई जरूरत नहीं है, कोई ब्राह्मण्स की या कोई यज्ञ की और सैक्रिफाइस की कोई जरूरत नहीं है। With your single or individual efforts, the attainment of the liberation could be achieved, वो प्राप्त किया जा सकता है, लिबरेशन को अटेन किया जा सकता है। सिमिलरली नाउ existing attain the liberation from the trial and tribulation of worldly existence। उन्होंने कहा कि अपने प्रयास से एंड फ्रॉम ग्रेट ट्रबल एंड सफरिंग से, अपनी ऑस्टेरिटी से, जैसे आप देखते हैं गौतम बुद्ध ने मिडिल मार्ग अपनाया, जो जिसको हम लोग अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। ओके, आप जानते भी हैं, राइट थॉट्स, राइट नॉलेज, राइट अर्नेस, राइट एफर्ट्स, बहुत से उनके 8 अष्टांगिक मार्ग है, जो ललित विस्तर जो बुक्स है उसमें इसका वर्णन है, और पहली बार इसको उन्होंने सारनाथ में सर्वेंट्स के फॉलो दिया था। मैं इधर उधर की बातें नहीं, वी हैव टू बी द कम टू द अवर पॉइंट, अंडरस्टैंड। तो ये जैसे गौतम बुद्ध ने इस बात को कहा, और फर्दर उन्होंने कहा कि दस द स्ट्राइव अटेनमेंट फ्रॉम ट्रायल्स और ट्रेवल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड एग्जिस्टेंस, और इन्होंने कहा कि अष्टांगिक मार्ग के थ्रू हम कर सकते हैं अगर आदमी को ट्रबल्स है तो, लेकिन वो तो एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी की बात करते हैं। कौन? महावीरा। एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी कहते हैं कि जो कर्म है, वॉट एवर द, कहते हैं कि हमारी जो आत्मा है या हमारा जो एग्जिस्टेंस है, ये आत्मा क्या है, हम जो कर्म करते हैं इस संसार में, तो दिस थ्रू दिस कर्म
We are bound to born in this world, or as long as and as times as we do the karma, this worldly karma, so long our worth happens. When by the austerity, by the sannyas, and by the great penance, we can achieve the nirvana. तब हम निर्वाण हमें मिल सकता है, डिलीवरेंस फ्रॉम दिस वर्ल्ड, इस दुनिया से मुक्ति मिल सकती है। मोक्ष का क्या मतलब है कि रिलीविंग फ्रॉम द बर्थ एंड डेथ। ये संसार जो है क्या है, बर्थ और डेथ का अ, एक संसार का ये अड्डा है जहाँ हम बर्थ होते हैं और हम फिर डेथ करते हैं। इससे हमें फॉर एवर रिलीफ मिल जाएगा, वी विल गेट, उनका ये मानना है। लेकिन जैनिज्म का क्या कहना है कि ऑस्टेरिटी, ट्राइबुलेशन ऑफ दिस वर्ल्डली एक्जिस्टेंस, हमें ग्रेट ट्रबल उठाना है और सफरिंग। ये दुनिया क्या है, ये सफरिंग्स है। जैसे आपको शंकराचार्य भी कहते हैं कि माया, और हम कब तक उलझे रहते हैं, जब तक माया में फंसे। दिस इज द माया जाल ऑफ नेटवर्क ऑफ द माया, और उसमें हम बंधे हुए। ये फादर हो, मदर हो, डॉटर हो, और सिस्टर और ब्रदर, और लाइक दैट, दिस इज द कंप्लीट माया, और उसमें हम फंसे। शंकराचार्य का क्या है, उनका रिलीवेंस कैसे पाना, जैसे कि हमें ज्ञान मार्ग पर, अगर हमें ज्ञान हो गया इस संसार का, तो हम सब कुछ छोड़ के चलते कि नहीं, नथिंग इज दैट, कोई चीज एग्जिस्टेंस नहीं, ये माया जाल है सब कुछ। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध है और कहते हैं महावीर, दिस वॉज द मार्क कॉन्ट्रास्ट टू द ब्राह्मणिकल पोजिशन wherein we have seen an individual's existence was thought to be the determined by his or her birth and a specific caste or gender। और वो कहते हैं कि नाउ उन्होंने दिस मार्क द कंट्रास्ट टू द, उनकी जो थॉट्स थी बिल्कुल कंट्रास्ट। यहाँ ब्राह्मणिकल थॉट्स में क्या था ऑर्डर में, कि नाउ एग्जिस्टेंस वाज थॉट टू बी द डिटरमिन। यहाँ पर जो अस्तित्व था किसी व्यक्ति का, वो बाई जन्म से वो डिटरमिन होता था, स्पेसिफिक कास्ट और जेंडर से होता था। उन्होंने इसी बात को स्ट्राइक किया, ए मैन इज ग्रेट नॉट बाय द जन्म, नॉट बाय द बर्थ, ए मैन शुड बी द गिवन एंड शुड बी द वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ हिज कर्म, ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्स। क्या वो कर्म करता है, कितना महान काम करता है, ये उस व्यक्ति की व्यक्तित्व और उसकी एक्सेलेंसी वहां पे मोर ओवर हम देखते हैं। इसके साथ साथ दिस इज द एक्शन और दिस इज द थॉट्स गिवन बाय, तो इन्होंने चैलेंज किया, पर्टिकुलरली ब्राह्मणिज्म को वाज द कंप्लीटली चैलेंज, ये ब्राह्मणिज्म को इन्होंने चैलेंज किया। और अमॉन्ग्स्ट देम फर्स्ट हैड द बियॉन्ड द वर्ल्ड प्लेजर, और इन्हें एक उन्होंने कहा कि दुनिया संसार की प्लेजर, तो इसमें अगर हम देखें तो महावीरा, तो महावीरा, इस मैसेज ऑफ द महावीरा क्या था, बियॉन्ड द प्लेजर्स ऑफ दिस। उनका मानना था, उनका लाइफ हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उन्होंने सब कुछ हार्ड पिनेंस किया उन्होंने। और जब वो जाते थे तो बच्चे उन पर, चिल्ड्रंस वर पेल्टिंग द स्टोन्स ऑन हिम, एंड व्हाट द एवर ही क्लैड्स, जिस निकले थे घर से 12 साल तक वंडरिंग करते रहे, और ये कपड़े खत्म हो गए, डिमिनिश्ड कर गए, खत्म। लास्ट में उनको, और इसीलिए वो इस संसार की प्लेजर्स को सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल मानते हैं। इसमें हमारे डिलीवरेंस से, लिबरेशन ऑफ आवर आत्मा और आवर लाइफ, कि जो प्लेजर में हम यहाँ इन्वॉल्व हो जाते हैं, वर्ल्डली प्लेजर में, यही सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है हमारे रिली
हमारे लिबरेशन, हमारे मोक्ष प्राप्ति के रास्ते। मोर ओवर बेसिक फिलोसफी ऑफ जैन्स का है कि एग्जिस्टेंट नॉर्दर्न इंडिया, बर्थ ऑफ द वर्धमाना, महावीर के पहले भी ये था, क्योंकि महावीर आप जानते हैं कि ही वाज ए 24 तीर्थंकर, और उनके पहले 23 तीर्थंकर ऑलरेडी दे हैड, ऑलरेडी बॉर्न हो चुके थे। 23 तीर्थंकर, ये 24 तीर्थंकर, और 23 जो तीर्थंकर थे वो आपके बहुत करीब के थे, बनारस के रहने वाले हो, यू ऑल ओके एंड बिलोंग टू दिस ना। तो नाउ यू शुड फाइंड आउट ये 20 हु वाज द 23rd। पहला तो फर्स्ट जो ऋषभ देव थे, मैं बता दे रहा हूँ। 23rd आप बताइए कौन थे और कहाँ से बिलोंग करते थे, किस फैमिली से बिलोंग करते थे, आप फाइंड आउट करके हमें बताइए। ओके, इट इज द योर मैटर ऑफ द डिस्कवरी। तो लेटर हम लोग चर्चा करेंगे इस सब्जेक्ट पर, और आज के लिए आज इतना ही रहने दीजिए। फिर हम अगले ये में हम लोग महावीर पर कंसंट्रेट, उनकी थॉट्स पर, कुछ उनकी लाइफ हिस्ट्री कहेंगे, जो कोई बहुत जरूरत नहीं है, हमें अपने इनके मेन टीचिंग्स पर ही फोकस करना है। अंडरस्टैंड? थोड़ी बहुत इसमें हम लोग करके फिर आगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।